बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह जपो जी गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह एक दे मंजूर एक दे मंजूर गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार जपो जी बेकसारा यार जपो जी सारे गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार बेकसारा यार
ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਹਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰਾਜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਖਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਹਰ ਜੰਗ 'ਚ ਫਤਿਹ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਦਕਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ। ਸਲਾਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਦੇਵੀ ਚੰਦ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
राज दरबारां च गल करन जान बख्शी जाए पाप तुहानूं बुरा ना लगे तो मैं सलाह दें। भीमचंद कहन लगा हाँ तू वजीर है मेरा, सलाह दे सका। ते देवी चंद ने कहा इस सभा च सलाहां हो रही ने कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं किवें खत्म किया जाए। पर राजा कलगियां वाला साडा दुश्मन नहीं, वो साडा भला सोचदे, वो चाहते कि असीं सारे रल के मुगलों का जुल्मी राज खत्म करिए। मेरी सलाह मना, असीं सारे गुरु गोबिंद सिंह जी की शरण पै जाइए, उन्हां दे नाल रल के जुल्मी राज नूं खत्म करिए। पर सासू सियाणियां दा कहना, कई मौके ऐसे होंदे ने बंदे नूं चंगी सिक्ख्या दिओ तां भी वो माड़े पासे ना। गल ते चंगी सी पर बर्दाश्त ना हो। भीमचंद गुस्से च आ गया, कहन लगा देवी चंद नूं वजीर मेरा, लूण मेरा खाना, गुण गुरु गोबिंद सिंह दे गाए। लगदा तू गुरु गोबिंद सिंह नाल मिलिया होया। देवी चंद शब्दावान सी, उहदे मन च प्यार आया, अखां भर आईयां गुरु दे प्यार विच कलगियां वाले। कहन लगा मिलिया ते होया अंदरों आखो सतनाम, क्योंकि मेरा गुरु है, मैनू पता साडा भला सोचदा है। राजन जे तेरा नमक खादा है ना ते तां ही ये सलाह दे रहे हैं, गुरु साडा वैरी नहीं, असीं उहदे नाल मिल के मुगल राज दा खात्मा करिए। भीमचंद कहन लगा अच्छा लगदा गुरु नाल मिलिया होया, गद्दार है तू आखो सतनाम, गुरु दे गुण गा रहे हैं। सिपाही ने हुक्म दिता पकड़ो इसनूं, हत्थां पैरां च बेड़ियां पाओ, सारे शहर च दा जलूस कटो, खूनी घाटी दे लै गरम किल करके दी अखां च ठोक दिओ। मैं देखदा इहदा गुरु गोबिंद सिंह नूं किवें बचांदा। किथे वजीर, घड़ी नहीं लगी ते कैदी बन गए, हत्थां पैरां च बेड़ियां पै गई, सारा दरबार हरा। एक ही हो गया। पर देवी चंद शांत है, कोई चिंता नहीं, कोई कलेश नहीं मन च। भीमचंद देखदा है, इहदा चेहरा शांत है, कोई घबराया नहीं, कोई हाय पुकार नहीं की, कोई माफी नहीं मंगी, बिल्कुल शांत है। सिपाही लाई गए, गली गली बिलासपुर की घुमाई, पर चेहरा बिल्कुल शांत। जिसले खूनी घाटी ते लै गए जिथे मौत की सजा दिंदे सन, पिछे लोगों की भीड़ भी है, उन्होंने रोक दिता गया, सिपाही भी रुक गए ते देवी चंद नूं दो जलादा ने पकड़िया, खूनी घाटी के अंदर लै गए। एक चट्टान ते देवी चंद नूं लटा दिता। अग वाली है, किल गरम करन लग पे। देवी चंद ने 4 सवेरे तकिया, मरे हुए लोगों दी हड्डियां खिल रही हुई, इल्लां उड़ रही ने, हर पासे मौत का नजारा है। जलादा वाला देखे अग वाली है, किल गरम करते हुए ने, एक बारी सारा तक लिया, 4 सवेरे तक लिया, फिर कलगियां वाले दे चरणों का ध्यान धरिया। फिर सोचा ना जलाद ने ना कोई किल गरम करता है, ना ही कोई खूनी घाटी है, ना मरिया बंदियां दी हड्डियां खिल रही ने। मेरी अखां सामने ते मेरा कलगियां वाला है, आखो सतनाम। मेरे कलगियां वाले दे चरणों नाल मन जोड़िया, अखां च कलगियां वाले दे चरण बसा ले, जिवें अखां बंद कर लईआं।
कद किल गर्म होए कुछ नहीं पता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उधर जलादा ने किल गर्म किए। किल भी इस तरह गर्म होए कि जिवें अग विच ते उन्हां च कोई फर्क नहीं। लाल अग दे नाल सन्नियां नाल पकड़े हुए किल जलाद देवी चंद दे सराणे आके खलो गए। आओ एक बार करो रचना बेकसारा यार बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार बेकसारा यार। जलाद सनिया नाल किल पकड़े देवी चंद दे सराणे आके खलो गए। देवी चंद दा चेहरा देखदे ने शाम हाथ पैर ते बजे बेड़ियां नाल चेहरे ते कोई चिंता नहीं। जलादा दे अपने दिल कंबदे पर हुक्म दे बच्चे नहीं। उन्हां सड़दे सड़दे किल देवी चंद दियां अखां च ठोक दिते। खून दी फुहार निकली है पर हैरान ने देवी चंद ने कोई चीख नहीं मारी, कोई हाय नहीं की। जलादा ने अपना काम किया। जांदे जांदे राह भी बंद कर गए, घाटी का दरवाजा भी बंद कर गए। अन्ना हो गया, हाथ पैर बजे ने बेड़ियां जकड़िया होया, तुर फिर भी नहीं सकता। इल्ला ने मांस नोच नोच के खा लेना, रोल रोल के मर जाएगा, ये सोच के चले गए। चला चले गए, दरवाजा भी बंद कर गए और रोलन देना अपने सेवक को। आखो सतनाम, कदी नहीं रोलन देता कलगियां वाला, असली चशी नहीं ओदे हो पाते। आखो सतनाम, जेड़ा कलगियां वाले दा हो जावे वो कदी दुखी नहीं बन देता। दुनिया नूं लगदा है बहुत दुखी है, पर ओदे दुख जिहड़े ने ना गुरु खत्म कर देता, मुका देता, सुखां च बदल देता। हर चीज नूं समां ते लगदा है ना। आखो सतनाम, जला चले गए। हुण गुरु उन्ने की खेड वर्ताई। एक बारी सारे प्यार नाल आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। आखो प्यार नाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। हत्थां पैरां दीयां बेड़ियां खुल गई, हत्थां पैरां दीयां बेड़ियां खुलियां ते देवी चंद ने मूंह ते हत्थ फेरिया, खून पूंज लवा जिवें मूंह ते हत्थ फेरिया ते अखां भी ठीक हो गईयां। आखो सतनाम, अखां भी ठीक। उठ के खलो गया देवी चंद, सामने देखिया जेड़ा दरवाजा जलाद बंद कर गए सन वो भी खुला हो। हुण ते मन इतना शुक्र प्यार च भर गया ते देवी चंद अपने आप नूं कहंदा, चल देवी चंदा, जिस कलगियां वाले ने तेरी रखिया कीती है, जिन्ने बंधन कटे ने, हुण ओदे कोल ही चल। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पैर नंगे है, पहाड़ी रास्ता है, तुरिया जांदा वाह उदाई, झाड़ियां नाल अड़ अड़ के कई जगह तो कपड़े भी फाट गए। पहाड़ी रास्ता जी, नंगे पैर लो लुहान हो रहे, पर तुरिया जांदा किदे कोल? जेड़ा बेकसां दा यार है, जिन्ना दा कोई नहीं, जिद कोल है सब कुछ पर निमाणा होके रहिंदा है ना, ओदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बेकसारा यार, बेकसारा यार,
गोरे गोबिंद सिंह बेकसारा यार, बेकसारा यार। पहाड़ी सफर मुका के देवी चंद आनंदपुर साहब जा पहुंचे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के कमरे के बाहर पहरेदार पहरा दे रहा है भाई आलम सिंह। देवी चंद ने जाकर बेनती की, सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने बड़ी दूरों आए हैं। भाई आलम सिंह कहने लगे, भाई गुरु का दर हर वेले सारे वास्ते खुला, पर अज सतगुरां दा हुक्म है किसी नूं कमरे विच नहीं आण देंगे। तू ठहर के फिर दर्शन कर। ते देवी चंद इतना शुक्र प्यार च भरिया होया सी, कहने लगा फेर के बहुत दूर है, बेनती कर, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मन तड़प रहा कलगियां वाले को देखने वास्ते। भाई आलम सिंह ने फिर कहा, भाई किसी को भी रोक नहीं, पर अज हुक्म है किसी को कमरे च नहीं जान देगा। ते देवी चंद अखां च आंसू आ गए, कहने लगा सिखा बेनती करी। बिलासपुर का वजीर आया देवी चंद, वो तेरे दर्शनों बगैर रह नहीं सकता। आखो साधा आलम सिंह भावे हुक्म सी किसी को नहीं आण देगा, पर देवी चंद के बोलना च प्यार इतना सी, वैराग सी, एक मिन्नत सी। भाई आलम सिंह को रहा सतगुरां दे कमरे च दाखिल होया ते बेनती की, दाता खिमा करियो, आप जी का हुक्म किस नूं आण नहीं देना। पर दाता बिलासपुर का वजीर आया देवी चंद, कहंदा मैं वजीर हाँ, हालों बेहाल है, कपड़े फटे ने, पैर भी नंगे ने, पर चेहरे ते तेज है। आखो सदा जिवें कोई राज घराने का बंदा। ते दाता कहंदा मैं रह नहीं सकता। क्या सी फिर आज कहने लगा मैं रह नहीं सकता। ते कलगियां वाले मुस्कुरा के कहने लगे, वो देवी चंद है, वो वजीर ही है, आलम सिया ओदा ही तो इंतजार करते पे, ओदा ही तो इंतजार है, जा उन्हें प्यार ना ले। भाई आलम सिंह मत्था टेके बाहर आए ते देवी चंद नूं बड़े प्यार नाल देवी चंदा कैसे कर्म ने तेरे, लोग गुरु नूं उड़ीकदे ने, गुरु तेनू क्या उड़ीकदा। चल करे बाहों पकड़ ले ते देवी चंद जिवें सतगुरां दे कमरे च दाखिल होया तां की देखदा सतगुरु पलंग ते सराणियां दी ढोल लगा के अध लेटे बैठे, ऊपर चादर नहीं, सीस ते छोटी दस्तार है। ते देवी चंद ने मत्था टेके, शुक्र च मन भरिया होया। जदों ज्यादा मन च प्यार हुए ना, कभी बहुता बोलिया भी नहीं, बस इतना ही क्या दाता बड़ी कृपा की थी। ते अगों कलगियां वाले की कहंदे ने, देवी चंदा कृपा तू मेरे ते कीती है। आखो सतनाम श्री। देवी चंद हैरान हो गया, कहने लगा सतगुर कृपा ते तुसां कीती। फिर कलगियां वाले कैसा है कलगियां वाले, जो आप रूप स्वरूप देखते हैं हमेशा आशीष ते सोहनी दस्तार, जिगा कलगी रेशमी बस्तर, शस्त्र सजे हुए, सुंदर दाड़ा, नूरी नूर चेहरा, नीले घोड़े का सवार।
कई बार बीबियां भैणां पढ़दियां ने ना, जे याद आवे तो बोलियो नाल, नीला घोड़ा बांका जोड़ा हाथ विच बाज सजाए ने, चलो सिंघो चल दर्शन करिए गुरु गोबिंद सिंह आए। क्यों मुस्कुराए? देवी चंदा कृपा तो की साडे ते देवी चंद फिर कहंदा दादा मेरी अखां च किल ठोके, हथां पैरां च लोहे दीयां जंजीरां बेड़ियां सन, बंधन ते तुसां कटे, कृपा ते तुसां कीती। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हौले जे मुस्कुराए ते कहन लगे देवी चंदा कृपा तो कीती साडे ते, जदों तेरी अखां च जलाद किल ठोकण लगे सन, तू साडे चरनां दा ध्यान करिया सी। जदों जलाद तेरी अखां च किल ठोकण लगे, तू साडे चरनां दा ध्यान करिया ते ओ किल साडे पैरां च लगे ने। आखो सतनाम, ओ किल साडे पैरां च लगे ने। ये कह के सतगुरां चादर हटाई ते देवी चंद देखदा है सारा बिस्तरा खून नाल भरिया होया है। सतगुरां दे पैरां दीयां तलियां जख्मी ने। सतगुरां सराणे थल्ले हथ मारिया, दो लम्बे लम्बे किल कट के सामने रख दिए, दो लम्बे लम्बे किल सराणे थल्लों कट के सामने रख दिते ते नाले मुस्कुरा के गया देवी चंद ये हुई किल सड़ना। आखो सतनाम, जेड़े देवी चंदा ये हुई किल सन जेड़े तेरी अखां च ठोके। जिस वेले नजारा देखे यूं अंदरों वैराग कुटे, अखां चों आंसू निकले जिवें कदम बरसात पैंदी। हुण इस प्यार दा कौन अंदाजा लगावे? देवी चंद वार वार मत्थे टेकदा है, रोंदा है, हाथ जोड़दा है ते नाल कहंदा कलगियां वालिया जे मैनूं पता हुंदा इह किल तुहाडे पैरां च लगने ने, मैं कदी अरदास ना करदा, मैं कदी अरदास ना करदा। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज देवी चंद नूं बाहों पकड़िया, करम रखो कोल बिठा लिया, पलंग ते गल नाल लगा लिया। क्या देवी चंदा सिखा तू क्यों अरदास ना करदा? सिखा क्यों अरदास ना करदा? नाले सुन, दुनिया दे किसे कोने पर सिख बैठा गुरु नानक नूं याद करदा है ते अरदास करदा है। जिसले दिलों अरदास करता है ना, दुनिया वालों कोई भी दुख आवे वो दुख गुरु नानक अपने ते ले लैंदा है, पर अपने सिख नूं प्यारे नूं तत्ती वाह नहीं लगन देंदा। इसे वास्ते ते कहने हैं ना, जब वो सारे ताती वाह ना लगई, पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे, राम का दुख लगे ना पाई। सतगुरु कहने लगे देवी चंद सिखा तू अरदास की थी, तेरी रखिया ते करनी सी, किरपा तू साडे ते कीती, साडे चरनां दा ध्यान धरिया। जे कदी साडे चेहरे दा ध्यान करदा ਇਹ ਕਿਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵੇ? ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, पर इस तरह करता होगा ये नहीं सी पता। आखो सतनाम, सत्संग गुरु ते साडे नाल ही है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर बिच सदा संभाले, पर असी ही दूर हो जाने। आखो सतनाम, दुनिया दे राग रंग खुशियां हसा खेड़ा, इस तू को मना नहीं है कि दुनिया छड़ के पहाड़ा च चले जाओ, घर परिवार च ना रहो, काम कार ना करो। सतगुरु ने कुछ त्यागण का नहीं किया, त्यागण वास्ते किया कुछ ते माड़ियां आदतां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗਣ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਚ ਰਹੋ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਭ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ। ਕਮਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਦੇਵੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਲੀ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਕਰੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਦਾਤਾ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਵੇ ਕਸਾਰਾ ਯਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, 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 ਵੇ ਕਸਾਰਾ ਯਾਰ, ਵੇ ਕਸਾਰਾ ਯਾਰ, ਵੇ ਕਸਾਰਾ ਯਾਰ, ਵੇ ਕਸਾਰਾ ਯਾਰ। इतनी सेवा प्रवान करनी। सच्चे पातशाह जी